वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कैफ़े वन। आज मेरे साथ दो ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं। आई हैव हैड द यूनिक अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग विद देम in APWA, which is one of our oldest NGOs. I have with me the president of APWA, Mrs. Laila Sarfaraz, who comes from a wonderful family that has contributed tremendously towards the development and human rights of the women and children of Pakistan, and a genuinely wonderful human being who's been doing pro bono work with the women and children prisoners in the central jail, as well as with APWA. He has started a free legal aid call center. Retired Justice Nasir Aslam Zahid. Welcome both of you. It's an honor to have you on the show. थोड़ा सा हम लोग शुरू करते हैं लीगल एड कॉल सेंटर के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये आप लोगों ने मतलब ये कब शुरू किया और इसके पीछे क्या वजूहात हैं? It started about a year back after the experiment with the legal aid in the jails. जी. I was just wondering and talking to people that it's very difficult for a person to find a lawyer. Suppose somebody has a problem, आपको समझ लीजिए, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके यहाँ एकदम से कोई लीगल प्रॉब्लम आ जाए, आपका कोई जानने वाला सहेली हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, वो कहे कि भाई एक मसला हो गया छोटा सा ना। अगर आप किसी और मुल्क में जाएं तो वहाँ बार एसोसिएशंस होती हैं, वहाँ पे और इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ आप जाके पता कर सकते हैं कि हमें वकील चाहिए, आपको वकील मिल जाता है। देखिए यहाँ अगर कोई बीमार हो तो बाहर जाके कोई ना कोई उसे अस्पताल कहीं ना कहीं मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप निकले कि हाँ अस्पताल वो है। यहाँ बड़ा मुश्किल है वकील को ढूंढना, क्योंकि अगर आपके पास एक क़ानूनी मसला आएगा तो सबसे पहले तो आप पता करना चाहेंगी कि भाई मेरी पोजीशन क्या है, क्या मैं दूसरे का केस मान लूँ, मेरा कोई राइट बनता है, क्या मैं कोर्ट में जाऊंगा, वेदर आई विल विन दिस केस, व्हाट इज़ माय राइट अंडर दिस। उसके लिए अगर वकील ढूंढेंगे तो एक तरीका बड़ा मुश्किल है कि भाई हाँ भाई वो जो हमारा दोस्त है ना उसकी बहनोई के पास एक केस आया था, दिस इज़ हाउ, अनलेस यू आर ऑलरेडी इन्वॉल्व इन लिटिगेशन। तो इस तरह आई वॉज जस्ट थिंकिंग दैट इफ़ वी हैड सम काइंड ऑफ अ कॉल सेंटर कि घर में बैठे हुए प्रॉब्लम हो गई, आपने टेलीफोन किया और आपको राय भी मिल गई घर में बैठे हुए और आपका वकील भी हो गया। तो somehow our friend Laila Sarfaraz was heard me, and next day I got the keys of upper office which was lying closed for some time. ये Metropole के opposite है village center. तो something which I was thinking aloud, now this was thrown in my lap कि भाई आप चलाएं इसको. This is how it started. एब्सोल्युटली वंडरफुल सर्विस जो प्रोवाइड हो रही है। इसके नीचे हम एक टिकर चलाएंगे जिसमें वो कॉल सेंटर का नंबर है। अगर आपके कोई भी लीगल इश्यूज हैं, डू कॉल अप एंड मेक यूज़ ऑफ दिस वंडरफुल सर्विस दैट इज़ अवेलेबल। मिसेस सरफराज, आप यू कम फ्रॉम अ फैमिली दैट हैज़ फ्रॉम डे वन been very actively involved in Pakistani politics as well as development work. आप बताएं कि what are the changes that you've seen over the years, and what are the challenges that you see this country facing? When APWA was formed 60 years ago, 60 years plus, Begum Liaquat, who was a very, very, I think, fine human being who thought so much for the empowerment of women, and when there was no conception of NGOs, she came forward as the Prime Minister's wife and said, I will set up an organization where women can be empowered. Now, if you look back, it's such a wonderful thing to have happened to the women of Pakistan, and the women of Pakistan are not even grateful for it, because really what she has done for the women all through her time, which everyone tells me you shouldn't go back into because what is gone. But if I'm in APWA today, I'm there because of the tremendous respect and admiration I have for this woman. Family laws were brought in by her, written by a lawyer of APWA, and which Begum Liaquat presented to Ayub Khan, and Ayub Khan then had it, and it hasn't been changed. Nothing has been
altered in it, and it still stands there as APPA's contribution for the women of Pakistan. So we started off, this is our first Prime Minister, the wife of our first Prime Minister. This is the birth of a new country, and glorious. I mean, what a wonderful जो है मैं तो कहती हूँ कि जो जितनी भी हमारी औरतों ने मतलब जहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वहाँ हमारी औरतों ने बहुत तरक्कियाँ भी की हैं. वीव हैड अ प्राइम मिनिस्टर, वीव हैव अ स्पीकर ऑफ द हाउस. सो इनहेरेंटली शुरू से ही हमने एक फेस देखा औरत का जो outgoing, in the world, serving the people. So she was a wonderful sort of example of that. एंड वो जो पूरा एक कल्चर था हमारा कि जहाँ मतलब आई बिलीव के लियाकत अली खान डिड नॉट लीव बिहाइंड एनी सॉर्ट ऑफ नो वेल्थ एट ऑल. ही गेव अवे ऑल हिज प्रॉपर्टी. तो वो लोग कहाँ हैं जो इस किस्म के जो लोग थे दैट फाउंडेड दिस कंट्री, द ड्रीम दैट दिस कंट्री स्टार्टेड ऑफ विद, वो सारे लोग कहाँ चले गए? By Mr. Aslam, Zahid Nasir's own mother was an APPA and contributed a lot towards its success. So there were fine women like her who joined Begum Liaquat. Today, unfortunately, we don't find those women because all our young girls are busy working in their boutiques and or different places and earning their livelihood. I suppose things have gone to such an extent that they have to work. But there are no women of that caliber who will come forward and say, we will give our time to APPA. So basically, that's one of our greatest failings. वो जो एक culture था of serving, of doing volunteer work, वो कम होता जा रहा है. I remember my mother, Begum Zahid Hussain. She came from a very conservative family. और बाहर निकलना नहीं होता था, I remember. लेकिन partition के बाद जब हम यहाँ आए, actually we came a year earlier. Our father had sent us to Pakistan in 1946. तो ये जो दफ्तर है जिसमें हमने अपवा लीगल एड कॉल सेंटर बनाया है, which is opposite Metropole, exactly opposite the village restaurant, उसमें अपवा ने हमें 5 साल के लिए दिया है, and we hope we can do the job well there. तो इसमें I remember going there क्योंकि अपवा का ऑफिस होता था. इसमें जो उनके साथ उनके लेफ्टिनेंट्स थे बेगम लियाकत अली के, one was my mother, Begum Zahid Hussain, the other was Khalid Anwar's mother, Begum Muhammad Ali, Begum Chaudhry Muhammad Ali, इन्होंने बहुत. And I remember ये लोग including my mother हर रोज़ ये जाते थे वहाँ पे कैंटोनमेंट स्टेशन या सिटी स्टेशन. ये वहाँ से जो ट्रेन्स आती थी इंडिया से, तो उसमें लोग लुटे हुए और जिस तरह एक किस्म के रेफ्यूजीज़ आते थे. यानी आप समझें कि वो ख़वातीन जो कंजर्वेटिव फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, वो सिर्फ़ इस जज्बे से कि ये हमारे भाई बहन हैं और इनकी हमें मदद करनी है, उनको फिर रेलवे स्टेशन पे जाना, फिर उनको डिवाइड करना कि भाई 30 लोग तुम ले जाओ, 30 लोग वो ले जाओ, फिर उनका इंतज़ाम करना. और उस ज़माने में काफ़ी ये वैक्यू प्रॉपर्टीज़ खाली होती थी, उसको जाके वहाँ उनको सेटल करना, फिर उनके लिए अलॉटमेंट ऑर्डर्स लेना, एलोकेशन ऑर्डर लेना. ये मर्द नहीं बल्कि मैं बता रहा हूँ ये ख़वातीन कर रही थी. और एक लीडर चाहिए था जो हर एक को जिसने मोबिलाइज किया. women of really the top positions. The best families, His mother was most the educated. governor's wife, who was the governor of the state bank. Am I correct? And Begum Muhammad Ali was the prime minister, the chief minister. He became later 56. He became the prime minister of Pakistan. So the top. So you just see, look at the caliber. ये देखें, ये खाली ब्लेम करना कि आजकल की औरतें या मर्द और हम लोग भी कमज़ोर हैं, हम काम नहीं करते, हर एक अपने मसाइल में लगा हुआ है. ये प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड है. वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम ये है कि आजकल लाइफ बहुत एक तो इसमें जैसे कहना चाहिए कि बहुत लोगों में गुस्सा आ गया है, टेम्परामेंट ठीक नहीं है, लड़ाई हो जाती है. अभी आपने पढ़ा होगा कि वो कहीं गाड़ी की टक्कर हो जाती है, लोग जमा हो जाते हैं, मारपीट होती है. तो ये इसमें ये सारी चीज़ें ना सिर्फ हमारे मुल्क में आई हैं बल्कि और मुल्कों में भी आई हैं. Azab, we'll get back to that. We need to take a short break. Do stay with us. We'll be right back. Welcome back, and we will continue our discussion. You're absolutely right कि एक तो ये stress level बहुत high हो गया है, and
also कि Violence बहुत आ गया हमारे। morals, ठीक है, वो values तो सब जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं, क्योंकि अब ये है नहीं, कि भाई आहिस्ता अगर आहिस्ता आप आहिस्ता पैसा आहिस्ता change हुआ। बनाएं, पैसा है तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, आपसे लोग मिलेंगे भी, आपके घर भी आएंगे, आपकी सिफारिश भी होगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बेवकूफ़ हैं, अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आप बेवकूफ़ हैं। यू नो what happened to the values that the respect was for someone's achievements, for what they were giving to humanity, Mrs. Sarfaraz? Well, I personally think that, you know, as time went on, fathers felt that their job didn't do them much good, in the sense that they felt they sent their children out to do business. I think what happened is that a lot of young men went abroad to study and came back to do business or work in multinational firms. So I don't know if I'm right or wrong, but I find that our bureaucrat, as the years have gone back on, the system, the quality has changed. Of people has They are not changed. of those parents who were bureaucrats themselves and who insisted that, you know, the children should have honorable professions, and whether they were lawyers or whether they पहले were तो डॉक्टर और लॉयर टाइप का एक कॉन्सेप्ट था, absolutely. but so you're saying that people from good families sort of withdrew Yes, from these yes, professions and yes. started sending their kids into And then finance there was and a business brain and drain in Pakistan also, where young men went out to look for better fields, and this place became, you know, just taken over by people who were not interested in, I personally think, in the welfare of its own people. So and especially as far as ये जो दो बहुत important professions हैं, politics and religion, ये तो हमने बिल्कुल ही hand over कर दिया ना. I mean, in the sense that anybody, you know, with good intentions or from a good family background were hesitating to get into these professions. I mean, your family has traditionally been involved in politics, but slowly Yes. you seem to be sort of Absolutely withdrawing. moved away, because politics is not something that one wants to और get आपका involved तो in. constituency Mardan, I mean, where all this Mardan, problem and is. my father's family was Lihari, but we've These just are the two moved away most from volatile kind of areas but today. we've moved away, and now we have no family member who's in politics. After Zari Sarfaraz, Zari Sarfaraz, Mir Afzal, they were both from Mardan, and my son stood in politics in Mardan, but Which he was did a very not bad want to. timing, He did not because want to stand. Both parties asked him to come in to their field, but he said, if I stand and when I come in as an independent, I will be able to decide. But what happened? They were wiped out. The mullahs all came in. this was the one sort of election And in he history said, I'll never where fight they- another election, because I think this was all he felt, you know, done with the help of a lot of people to bring in the right people. True, people they but wanted. आप मुझे बताएं कि देखें, एक तरह से ये सही हुआ कि मतलब are these people not more dangerous on the sidelines? कि मतलब आप इनको थोड़ा सा ये mainstream में लाके, is it easier to control these extremist elements by bringing them into the mainstream and having them participate in the system and dialogue, or what is the solution? Because I don't know what Aslam Saab thinks, but I really feel, I hope that in my lifetime I'll be able to see a better Pakistan without the terrorists. What do you have to say about this? Slowly हमारे जो वायलेंस आया हमारी कम्युनिटीज़ में, हमारी सोसाइटी में, not only in Pakistan but in other countries also, लेकिन पाकिस्तान में on account of its position, strategic position next to Afghanistan, and तो यहाँ पे इतना तो नहीं था. देखें ना, ये जो सुसाइड बॉम्बर्स आए हैं, ये पहले यहाँ पे तो नहीं होते थे. इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, ये तो साउथ इंडिया में बल्कि श्रीलंका में शुरू हुए थे, और हमारे पार्टीशन से पहले ये जापानीज़ होते थे. जापानीज़ को अगर आपको याद होगा कि इसके हाराकीरी, और ये अक्सर ये जो पायलट्स होते थे वो अपने जहाज़ लेके और जाके दुश्मनों के अंदर जाकर आहिस्ता आहिस्ता ये उधर गया है, फिर श्रीलंका आया है. यू वुड रिमेंबर दैट इन इंडिया ऑल्सो राजीव गांधी वाज assassinated by, blown up by woman suicide bomber. फिर उसके बाद हमने देखा है कि पैलेस्टाइन और उस इलाके में जब इन इसराइल बना है, उसके बाद वहाँ पे भी ये मसला शुरू हो गया. And we thought, it was never thought that Pakistan would ever be invaded or be full of people like the suicide bombers now we have.
तो लेकिन इसको कुछ जी ना कुछ मसला तो डे वन से शुरू हो गया था ना. आई मीन लियाकत अली खान वाज आफ्टर ऑल assassinated. absolutely. By whom? फातिमा जिन्ना के खिलाफ एक पूरा एक पूरा एक मूवमेंट खड़ा हो गया था ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ टाइप ऑफ. ये इसका एक ये भी कह सकते हैं कि इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में एजुकेशन थी, वहाँ एक सोसाइटी वहाँ पे चल रही थी, लेकिन हमारे यहाँ पंजाब को अगर आप छोड़ दें और सिंध के एक दो शहरों को छोड़ दें तो बाकी एरिया तो सारा ट्राइबल एरिया था ना. ये सारा फ्यूडल एंड ट्राइबल एरिया, और सिंध में भी ट्राइबल एरिया है, साउथ पंजाब में भी ट्राइबल एरिया है. तो सारा जो हमें ये मिला लीविंग असाइड ईस्ट पाकिस्तान, तो NWFP है फॉर इंस्टेंस, बलूचिस्तान है, ये ट्राइबल एरियाज़ है, और इनको इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमारी मिलिट्री है और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है और आपके ये फ्यूडल्स हैं, फिर अब आजकल तो इंडस्ट्रियल फ्यूडल्स भी आ गए हैं, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल कर लिया है. और समहाउ और दी अदर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी जो है वो रूट नहीं ले सकी. हाँ, रूट नहीं ले सकी है. और अब तो ये होता है लोग जो जब डेमोक्रेटिक ईरा यहाँ पे आता है तो उनकी परफॉर्मेंस ऐसी होती है कि लोग कहते हैं कि नहीं, इससे तो बेहतर हमारी मिलिट्री डिक्टेटरशिप भी थी. लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि किसी किस्म की भी डेमोक्रेसी हो, इट इज़ बेटर दैन मिलिट्री डिक्टेटरशिप, क्योंकि मिलिट्री डिक्टेटरशिप जब आती है तो एक वैक्यूम क्रिएट कर देती है. पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती, ह्यूमन राइट्स की एक्टिविटीज़ नहीं होती. और ये आर्मी वाले ये कहते हैं आके कि हम ये 8-10 साल में मुल्क को ठीक कर देंगे, तैयार कर देंगे, व्हेन इट इज़ रेडी फॉर डेमोक्रेसी तो हम चले जाएंगे इलेक्शन करा के. आप देख लें जितने भी आए, अयूब खान का ज़माना, फिर ज़ियाउल हक का ज़माना, फिर प्रेसिडेंट मुशर्रफ का ज़माना, इस सारे पीरियड में जो वैक्यूम क्रिएट होता है तो उसके बाद जब भी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है वहाँ दे हैव टू स्टार्ट डे वन. दिस हैज़ टू बी रिमेंबर्ड. तो somehow the military has played a role in whatever we find today in our society. तो ये सारा मैं कहता हूँ कि सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, बहुत और भी बहुत मुल्क हैं. और अगर देखा जाए कि काफ़ी मुल्क ऐसे हैं जो मुसलमान मुल्क समझे जाते हैं, उनमें डेमोक्रेसी जो है वो वहाँ रूट्स नहीं ले सकी है. आई डोंट नो वाई, बट हमारे मुल्क में तो ये बात ज़ाहिर है कि द मेजॉरिटी ऑफ द एरिया वाज ट्राइबल, और उसके बाद उनके पुराने ट्राइबल कस्टम्स थे, और उसके बाद जो लोग आए उन्होंने somehow they got control. And I still think that even today there are very few people who control the destiny of Pakistan. Absolutely. अब लेकिन इसका solution क्या है when a majority of our parliamentarians, majority of the people in politics देखिए इसमें कोई हल तो किसी चीज़ का हल कट एंड राइट तो नहीं होता. देखिए अब हमारी नेशनल जुडिशल पॉलिसी आई है, चौधरी इफ्तिखार साहब ने बड़े डिसीजंस लिए हैं, कल आपने देख लिया क्या फ़ैसला हुआ. लेकिन इन डिसीजंस से जो इंसाफ है वो आम तो नहीं हो जाएगा ना, उसके लिए तो बड़ी तगो-दो करनी पड़ेगी. यू हैव टू रियली यानी पुट ऑल योर एफर्ट्स, सारे स्टेक होल्डर्स हैं. तो एक दो चीज़ें मैं कहूँगा. एक तो हमारे यहाँ एजुकेशन की बहुत वो है. आई हैव बीन इन्वॉल्व इन सम प्रोजेक्ट्स एंड आई फाइंड कि जो हमारे पब्लिक स्कूल्स हैं, अब समझ लें कि आपके यहाँ इस वक्त 2 लाख पब्लिक स्कूल्स हैं. यानी ये गवर्नमेंट. Sorry, we need to take a short break. Hold that thought and we'll get Laila Auntie's perspective on that as well. Do stay with us. We'll be right back. Welcome back and we'll continue our discussion. You know, education पे बहुत बात होती है. एजुकेशन अगर किसी तरह, अब ये कौन शुरू करेगा, मैं कोई फ़िलासफ़र थिंकर तो हूँ नहीं. अगर एजुकेशन हमारे पास सही हो जाती तो बहुत सारे हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर हो जाती. जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, हमारी पूरी सोसाइटी अनएजुकेटेड है. आप हमारे पास लोग आते हैं BA करके आते हैं, पता चलता है कि वो उनका कोई कसूर नहीं है, उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है सही नहीं मिले. और जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारे पास कोई 2 लाख पब्लिक स्कूल्स हैं, उसमें से चंद को छोड़ के जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है और जो जिस तरह पढ़ाया जाता है, उससे जो लोग निकल रहे हैं दे आर नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग ओवर फ्रॉम द प्रीवियस पीपल हु आर इन चार्ज. तो ये एजुकेशन का हमारे यहाँ इलिटरेट सोसाइटी बना है. एब्सोल्युटली एंड वी नीड टू वर्क ऑन दिस. और बट ये हमारा देन अगेन आप 20 साल इंतज़ार करें कि वो जो क्रॉप जो है वो एजुकेट होके आए, तो फिर अब 20 साल बाद आप भूल जाएं. लेकिन आजकल के ज़माने में यू नो विद टेक्नोलॉजी, विद द मीडिया, दिस एंड दैट,
अवेयरनेस बहुत हो गई है, हो सकता है ऑब्वियसली एजुकेशन एज सच नहीं है, बट एजुकेशन आई थिंक एन एक्सपोजर गो हैंड इन हैंड, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ABC एनी मोर, क्योंकि हमारे जो कॉमन मैन है वो बहुत अवेयर हो चुका है, perhaps because of the media, you know, they are very politically aware, they are getting aware of their rights and so forth, and there's a frustration that is coming into them. अभी आपने वो लियारी का किस्सा सुना होगा, where people are taking the law into their own hands. मतलब है, you know, education, but you know, even in America, for instance, you know, the common person there is not only uneducated but very unaware. हमारा, I find our people are very wise, very aware and very frustrated right now. नहीं देखें ना, जब तक कि आपके पास एजुकेशन नहीं आएगा, आई एम टॉकिंग अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, जब तक कि एजुकेशन नहीं आएगी, उनको ट्रेन नहीं किया जाएगा किसी अच्छे प्रोफेशंस में, तो बताइए उनकी कैपेबिलिटीज़ कैसे बढ़ेंगी. यू सी, आई एम टॉकिंग इट टू यू विद रेफरेंस टू द एक्सपीरियंस आई हैव हैड एट द ग्रास रूट लेवल. ये जो जुवेनाइल जेल्स में और जो बाकी जेल में हम जाते हैं, फॉर इंस्टेंस इस वक्त कोई 174 आपकी जुवेनाइल जेल में इस वक्त आज के फिगर्स हैं यहाँ पे कराची में, इसमें से 97% बच्चे जो हैं बिटवीन द एजेस ऑफ 15 to 18. आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो आम बच्चा कराची के इससे आ रहा है, ज़्यादातर कराची के लोग हैं वो, तो वो पढ़ा लिखा होगा. जब उनसे हम इंटरव्यू करते हैं तो पता चलता है कि फॉर इकोनॉमिक रीजंस वो अपनी एजुकेशन जो है आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि उन पे पता चला माँ बाप में से एक बीमार है, 2 बच्चे हैं, 2 बहनें हैं छोटी, 1-2 भाई हैं. वो कहते हैं जी हमने दूसरी तीसरी तो तक पढ़ा, लेकिन जब ज़रा उम्र बड़ी हुई 12-13 साल की हुई तो हमें काम करना पड़ा, क्योंकि इकोनॉमिक रीजंस की वजह से हमारा बाप या माँ अकेले काम करके हम लोगों को ज़िंदा नहीं रख सकते थे. और 80s में कि वो हुआ था ना कि देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल विद डिग्रीज, स्पेशली जो महाजर कम्युनिटी थी, उसका पहले एम्फेसिस बहुत ज़्यादा था एजुकेशन पे, बट देन दे फेल्ट कि भाई देयर सो मेनी पीपल वॉकिंग अराउंड विद डिग्रीज एंड नो जॉब्स अवेलेबल, बिकॉज वो सिफारिश से जॉब मिल रहा है, यू नो. Educated by far. I find that they are. Their parents make it a point, and I think whether they're subsidized or what, I don't because know. वो non-feudal, non-tribal background जेल्स से. का आपको बता रहा हूँ कि जो लोअर स्ट्राटा से आते हैं उनके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है कि आगे जाना. आप बताएं, you are hands on, you know, आप APWA के इतने सारे schools हैं, Well, colleges. APWA had very many colleges and schools doing extremely well. In 72, all our senior schools and universities were nationalized. 360. So I we believe. started at the primary level, and there are very few schools that are now doing the secondary and higher school as well, because it was just all taken away. The land went with the school, and today those schools, we keep telling the government, please give it back to us, and we will try to make a go of it, because our schools are, the small schools are running well. Most of them are all primary, but we are doing, I think, a very good job, where the children are very happy. I mean, I've had children from government school coming, because our schools also are 50 rupees fees. It's all subsidized by APWA. But the trouble is that I find that, again, as Nasir Saab said, that the parents just feel girls should not be educated. This is my sadness. They feel लड़के को आप ले लें, लड़की हम नहीं दे सकते क्योंकि 50 रुपया उसके लिए बहुत ज़्यादा है. उसकी तो शादी हो जाएगी 4-5 साल में, तो क्या फ़ायदा उसको educate. This pains me a lot, so I try and tell the school that take 5 boys and all the others should be girls in every class. But they say the mothers come and weep and cry and say, please take our boys. So there is no answer to this, and I just feel if the government schools pulled up their socks, because there are so many now private schools. I know my Mali's children go to a private school where the education is really zero, but I subsidize him by paying 375 for each child's education. That's a lot for the man, but he who is illiterate wants his children educated, so 3 of his children. My cook, who comes from Aptabad, he's got 2 boys in a private, semi-private school where the fees are 400. But he's very keen that wo Angrezi seekhe and Urdu seekhe. So parents are keen, but they can't afford it. Private schools So are very expensive. Yes, and government schools are really not worth, you know. वहाँ तो गो स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है कि भाई वो इमारत है बिल्कुल, वहाँ, लेकिन ना वहाँ बिल्कुल, टीचर आ रही है, ना बिल्कुल, वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं. बिल्कुल. तो इसमें क्या मतलब है, एक तो ये है कि भाई जो टीचर्स की सैलरीज वगैरह है, कॉम्पनसेशन है, दैट इज़ नॉट इनफ. अब ये
सोसाइटी के अंदर इतनी अंदर रच बस गई है कि नाउ इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ एवरीवन। उसको अब आप ये नहीं है कि एक एडहॉक मेथड से आप उसे ठीक कर सकेंगे, ये तो पूरी सोसाइटी को ठीक करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। हांगकांग का एक है 70s में हांगकांग पुलिस वाज सपोज टू बी द वर्स्ट। अगर आपको कोई काम कराना पड़ता था तो उसे पैसे देने पड़ते थे वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स को। दे हैव हैड so much of corruption in those days that it was the things came to a point where the political parties, the government and the people अखबारों में आना शुरू हो गया। अच्छा, उनका जो वो था आईजी जो था वहाँ का हांगकांग का, ही वॉज अ ब्रिटिशर। वो कोई कई करोड़ रुपए लेके और वो भाग गया, और उसके बाद फिर इन्होंने एक कमीशन बनाया, कमीशन अगेंस्ट करप्शन। लेकिन ये इसलिए वहाँ करप्शन का कमीशन बना और इसलिए वहाँ उसमें कुछ पेशरफ्त हुई क्योंकि सारी सोसाइटी ने फ़ैसला किया, सारी जो वहाँ की सिविल सोसाइटी उसने फ़ैसला किया, सारे जो लीडरान थे उन्होंने फ़ैसला किया, सारी गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया कि ना, वी हैव हैड इनफ, वी मस्ट। तो ये अगर चंद लोग डिसाइड कर लेंगे, गवर्नमेंट में चंद लोग बैठे हुए होंगे या चंद NGOs डिसाइड कर लेंगी, उससे तो करप्शन नहीं जाएगी। लेकिन उन्होंने नहीं, उन्होंने सारे, हाँ, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने सब किया। और उसके बाद आपको मालूम है कि दे वर एबल टू गेट दैट मैन एक्स्ट्राडाइटेड। वो भाग गया था लंदन से उसे एक्स्ट्राडाइट करवाया, उसका ट्रायल हुई, उसे 10 साल की सज़ा हुई। उसके बाद से विद इन जब कहते हैं ना हम कि ये करप्शन जो है 100 साल लग जाएंगे, you know, in a matter of less than 10 years, Hong Kong police became the most honest police in the entire area. We need to take a break. This is a very good thought कि अगर accountability हो, लोगों को सज़ा मिले, तो फिर जो है corruption definitely जो है people will think twice about being corrupt. We'll join you in a minute. Welcome back, and let's continue our discussion. So yes, absolutely कि we need you know देखिए, it's difficult. As I said, I'm neither a thinker or a philosopher. लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लोगों को ये समझना कि perhaps it will take 100 years, लेकिन कम से कम हम राइट डायरेक्शन की तरफ अपने मुल्क की सिमत तो उस तरफ राइट डायरेक्शन में कर लें। अगर एक दफ़ा इफ़ ही स्टार्ट गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन, परहैप्स 10, 20, 30, 40 ईयर्स हो सकता है। और जहाँ तक एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने मौजूद हैं, मलेशिया के एग्ज़ाम्पल है, कोरिया का इकोनॉमिक एग्ज़ाम्पल है कि इन्होंने इन अ मैटर ऑफ 20, 30 ईयर्स इन्होंने अपना सब पावर्टी ख़त्म करके एक सोसाइटी बना ली विच इज़ कम्फर्टेबल। आई हैव गॉन टू मलेशिया एंड आई हैव सीन इन हांगकांग, ये सारी जगह मैंने देखी हैं। तो मुझे पता चला इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मलेशिया फॉर इंस्टेंस, स्पेशली ये आपका जो है कोरिया जो है, साउथ कोरिया, इन लोगों ने तो 20 ईयर्स के अंदर काया पलट कर दिया, यानी कम से कम इकोनॉमिकली। जब अगर इकोनॉमिकली हो सकता है तो हो सकता है करप्शन के लिए, लेकिन एक गवर्नमेंट को फैसला करना पड़ेगा, स्टेक होल्डर्स को फैसला करना पड़ेगा, जिसमें आपके पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े लोग हैं, सिविल सोसाइटी को प्रेशर ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। जब तक ये एडहॉक मेजर से नहीं चलेगा, जैसे मिस्टर सरफराज, द पॉइंट इज कि लोग अपना, हमारा जो कॉमन मैन है, दे आर फेड अप, दे वांट अकाउंटेबिलिटी, दे वांट अ स्टॉप टू दिस। लेकिन हम जब कहते हैं कि जी पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी और ये वो, तो दे आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, दे आर द वंस हु आर परपेचुएटिंग एंड फीडिंग ऑफ दिस करप्शन एंड ऑल दैट। तो how do we force them to take these actions? Well, the poor man who is hardly able to feed his family, he becomes corrupt. What do you do about that? How does he become corrupt? He takes from his master, charges him extra for whatever it is. I've known that drivers go to the petrol station, they put in petrol and they tell the man, इसमें कम डालना, हमें हमारा हिस्सा दे दो, मगर तुम बिल पे वही लिखो जो वो कह रहे हैं। So I mean, what the corruption has started from the very low level, where once one felt one could trust people if you looked after them. Yes. हाँ, मतलब आप ऊपर देख रहे हैं कि आपके जो सबसे, अब आप देखिए कि इन्फ्लेशन इतनी हो गई है, उसके बावजूद लोग किसी ना किसी तरह पैसे बना ही देते हैं। उसमें सही तरीके से ही बनाते हैं, लेकिन जैसे हमारे दोस्त कहते हैं कि नाउ इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो उसमें अब एडहॉक मेजर्स नहीं चलेंगे एंड अ डिसीजन हैज़ टू बी टेकन वेरी सून। नहीं, मुझे बताएं कि जो इंटेलिजेंसिया है, हमारे जो चंद अच्छे लोग, अच्छी फैमिलीज़ रह गई हैं,
वो मतलब इतना अपने आप को साइडलाइन क्यों उन्होंने किया हुआ है? व्हाई आर दे नॉट गेटिंग इनटू द First, make life good for the man who's on the street. When you have done that, then you start coming मेरा up. ख्याल है कि मीडिया कैन How? प्ले अ लॉट ऑफ अगर रोल प्ले कर सकता है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो आपने जिक्र किया था कि द कॉमन मैन इज़ नाउ अवेयर ऑफ इज़ वेरी वेरी कॉन्शियस, ही नोज़ व्हाट्स गोइंग ऑन एंड ही अंडरस्टैंड्स. इट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वरना तो पहले नहीं होता था. अब यहाँ किसी लड़की के साथ कुछ हो जाए, अखबार में आ जाए, तो पूरे पाकिस्तान को खबर मिल जाती है. वो एक दो अभी इंसिडेंट हुए थे रिसेंटली, सबको पता था. ठीक है, उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ बाद में, वो और है, लेकिन लोगों को पता जल्दी चलता है. तो आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक सिविल सोसाइटी की तरफ से मूवमेंट हो और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसमें साथ दे. अब ये मुज़ाकरात होते हैं, इस मुज़ाकरात में कुछ ऐसे मुज़ाकरात होने चाहिए कि जिनका मकसद ये हो कि वो रास्ता दिखाएं कि दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट. देखें, यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटीज़ का बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है. और जगह ये होता है कि ये प्रॉब्लम जैसे हमारे पास ही आ रही है करप्शन की, तो आप कहते हैं इनएफिशिएंसी की आ रही है. आपके यहाँ लोग लेट आते हैं दफ्तरों में, काम नहीं करते हैं, एपथी है. तो ये एक सोसाइटी की ये प्रॉब्लम्स हैं. तो अगर आपके पास यूनिवर्सिटीज़ अच्छी होती हैं, वहाँ प्रोफेसर्स होते, यू कुड सेंड देम दिस रिसर्च प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट कुड सेंड देम कि भाई हम पॉलिटिशियंस तो ये फैसला नहीं कर सकते, आप मेहरबानी कि आपके यहाँ थिंकर्स हैं, आपके यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, प्रोफेसर्स, they should come out with the suggestions and so forth. लेकिन हमारे यहाँ तो यूनिवर्सिटीज़ की suggestions और systems और laws भी हैं, उनकी implementation again is a problem कि the people who are meant to implement those reforms have vested interests as well. ये एक बात ये है, लोगों को शायद पसंद आए, मैं कहता हूँ जजेस जो हैं वो हमारा लीगल सिस्टम चेंज नहीं कर सकते. जजेस रिलीफ दे सकते हैं. मैं भी 92 94 था, हज़ारों आदमियों को ख़त लिखते थे, हमने पिटिशन बना के रिलीफ दे दी. लेकिन एक चीज़ बार बार आती थी, पुलिस ने गड़बड़ की, हमने बुला लिया, उसको डांटा, उसको सज़ा दिलवा दी, ये कर दिया, लेकिन वो चीज़ बार बार आती थी. इसका मतलब है आप रिलीफ तो देते जा रहे हैं, लेकिन आपने उसको, आप उस इल को, उस मुश्किल को ठीक नहीं कर सकते. उसकी रूट कॉज पे हम नहीं जा पा रहे हैं. तो उसके लिए जी सॉरी, वी नीड टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक. डू स्टे विद अस, वील बी राइट बैक. Welcome back, and let's continue our discussion. Mrs. Sarfaraz, what do you see in the future? Do you have hope? Well, of course I have hope. Without hope, when one cannot survive. And I try and see what I can do in my own little field. But what I would like to ask is that if any young girl who wishes to do a medical profession, and she has reached a standard in her university where she's got good marks, APA will train her to become a doctor. We will send her completely, because I've had people in England who are doctors who have said we would like to pay the fees of any young girl who wishes to become a doctor. Fabulous. So we have tried talking to Dow Medical College and other colleges, but no one has come back. But I'm sure there must be many a girl. The percentage of marks must be 80 plus. And then we will consider it. So all you medical students out there, this is an amazing opportunity for a scholarship. We will give you APWA's phone number and website at the bottom of the frame soon, and do give us a call, and perhaps you can get a scholarship to study medicine. मैं उस बात को मुकम्मल कर दूँ, 1-2 मिनट हैं अभी आपके प्रोग्राम में बाकी. देखिए, ये सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमारे दोस्त का मैं फिर जिक्र करूँगा, प्रोफेसर अकबर वसीम साहब से. वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास मोबाइल में आपकी कोई प्रॉब्लम हो जाए, वेयर विल यू गो? यू विल गो टू अ शॉप जो कि मोबाइल से डील करती है. अगर आप ये इस मोबाइल को किसी इंटेलेक्चुअल के पास तो नहीं ले जाएंगे, किसी थिंकर या प्रोफेसर के पास. इसी तरह ये जो चीज़ें हैं, करप्शन है, कोर्ट में जाएं. आप कह रहे हैं, आप एडवोकेट करें कि वी शुड गो टू कोर्ट. मैं ये कह रहा हूँ कि ये हैं सोसाइटी की कमज़ोरियाँ, उनकी बीमारियाँ हैं. तो सोसाइटी की बीमारियाँ जो हैं, वो जज जो है वो नहीं ठीक कर सकते. उनको बैंकर्स शौकत अजीज़ साहब नहीं ठीक कर सकते. उनको मिलिट्री वाले मुशर्रफ साहब ठीक नहीं कर सकते. उनको जो ठीक करते हैं वो आपके ये सोशल ये आपके थिंकर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं. यानी इकोनॉमिस्ट है वो इकोनॉमी को ठीक कर सकता, बैंकर नहीं ठीक कर सकता. इसी तरह जजेस जो हैं वो जुडिशल सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते, जूरिस्ट ठीक कर सकते हैं. तो इसी तरह इनको वो कहते हैं कि ये है सोशल इंजीनियर्स. तो हमारे यहाँ सारा प्रेशर जो 30 साल से है कि जी MBA कर लो,
कंप्यूटर में चले जाओ, इंजीनियरिंग में चले जाओ, डॉक्टर में चले जाओ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है। उन पे हमारा कोई ज़ोर नहीं है। हमने कितने थिंकर्स पैदा किए हैं, कितने फ़िलासफ़र्स पैदा किए हैं, बताइए, कितने आपने इकोनॉमिस्ट बड़े बड़े पैदा किए हैं। तो जब तक उस तरफ तवज्जो नहीं होगी कि सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिफेक्ट्स हैं, बीमारियां हैं, उनके लिए हमें डॉक्टर्स चाहिए, एंड दीज आर द पीपल who will be able to guide us to the right direction. It was wonderful speaking to both of you. Thank you so much for being on the show. This is a very, very good point कि सिर्फ पैसे के पीछे भागना, सिर्फ finance में degree करना is not going to solve our problems. Please, encourage our youth to diversify and become experts in different fields so they can actually come back and contribute and come up with solutions for our country. Do join us next week on another episode of Cafe One. Thank you.